بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ صحت کارڈ پر کینسر اور دل کا علاج اچانک بند کر دیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت کا نیا کارڈ لانے کا اعلان۔ کینسر اور دل کے مریضوں کے لیے 16 ارب روپے کا نیا میگا پروگرام منظور کیا گیا ہے۔ کینسر کے لیے 13 ارب اور کارڈک سرجری کے لیے 3 ارب روپے مختص کر دیے گئے۔ پنجاب حکومت نے صحت کارڈ سے کینسر اور کارڈک سرجری کا علاج ختم کر دیا۔ مریضوں کے لیے وزیر اعلیٰ کی خصوصی کینسر اور کارڈک پروگرام کے تحت علاج مہیا ہوگا۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق کینسر پروگرام کے لیے سالانہ 13 ارب روپے، کارڈک سرجری پروگرام کے لیے 3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ صرف کینسر اور دل کے مریضوں کے علاج پر مجموعی طور پر 16 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ منصوبے پر عمل درآمد کی ذمہ داری پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی کو سونپ دی گئی ہے۔ آئندہ کینسر اور کارڈک سرجری کے مریضوں کا علاج روایتی صحت کارڈ کے بجائے وزیر اعلیٰ کے نئے خصوصی پروگراموں کے تحت کیا جائے گا۔ میو اسپتال میں دل کا علاج مذاق بن گیا۔ جس اسپتال میں دل ٹھنڈا ہونا تھا وہاں کے اے سی بند، تپتے وارڈز اور بند کولنگ سسٹم نے انجیوگرافی کا عمل ٹھپ کر دیا۔ ایک ہفتے سے الیکٹیو ٹیسٹ بھی معطل ہیں۔ آج نہیں اگلے مہینے آنا۔ انجیوگرافی کے مریضوں کو نئی تاریخیں دے کر ترخایا جانے لگا۔ میو ہسپتال کے شعبہ کارڈیولوجی میں ایئر کنڈیشننگ سسٹم بند ہو گیا۔ کولنگ سسٹم بند ہونے سے معمول کی انجیوگرافی لسٹ منسوخ کر دی گئی ہے۔ میو ہسپتال میں انجیوگرافی کا ایئر کنڈیشنر خراب ہونے سے ایک ہفتے سے الیکٹیو ٹیسٹ تعطل سے دوچار ہے۔ روزانہ 1 درجن سے زائد مریض انجیوگرافی نہ ہونے کی وجہ سے دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے۔ انجیوگرافی کے لیے آئے مریضوں کو شدید پریشانی لاحق ہے اور ٹیسٹ کے لیے نئی تاریخ دے کر ٹرخایا جا رہا ہے۔ میو ہسپتال میں ایئر کنڈیشننگ سسٹم بند ہونے سے انجیوگرافی مشین کو صرف اکا دکا پرائمری انجیوگرافی ٹیسٹ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق شعبہ کارڈیولوجی میں کولنگ سسٹم بند ہونے سے انجیوگرافی مشین ہیٹ اپ ہونے کا خدشہ ہے، جس کی وجہ سے ٹیسٹ نہیں ہو رہے۔ ایک ہفتہ گزرنے کے باوجود انتظامیہ تاحال کولنگ سسٹم کو فعال نہیں کر سکی۔ اور شاپنگ مالز اور ہوٹلز کی منمانی ختم۔ شاپنگ بیگز پر الگ چارجز لینے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ دکانوں اور شاپنگ مالز کے لیے مفت بیگز دینا لازم کرا دیا گیا ہے۔ ماحول دوست بیگ کے پیسے مانگے تو دکان سیل اور FIR درج ہوگی۔ گاہک سے بیگ کی قیمت وصول کی تو 50,000 روپے تک جرمانہ ہوگا۔ جی ہاں، شاپنگ مالز اور ہوٹلوں کی منمانی ختم۔ شاپنگ بیگز پر اگر چارجز لینے پر مکمل پابندی آئے، دکانوں اور شاپنگ مالز کے لیے مفت بیگز دینا لازم قرار۔ ماحول دوست بیگ کے پیسے مانگے تو دکان سیل اور FIR ہوگی۔ گاہک سے بیگ کی قیمت وصول کی تو 50,000 روپے تک جرمانہ ہوگا۔ مہنگائی کے جن نے لاہور پر پھر قبضہ کر لیا۔ اوپن مارکیٹ میں چاول کی قیمتوں میں بھی تیزی کا رجحان برقرار ہے، جس کے باعث کم آمدنی والے طبقے کی مالی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ جبکہ دودھ، دہی اور دیگر اشیاء ضروریات سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق دستیاب نہیں ہے۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق مختلف اقسام کے چاول کی قیمتوں میں 5 سے 8 روپے فی کلو گرام تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پریمیم کوالٹی چاول 520 سے 640 روپے فی کلو گرام، جبکہ دوم درجے کے چاول 420 سے 500 روپے فی کلو گرام میں فروخت ہو رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اشیاء خورنوش کی مسلسل بڑھتی ہوئی قیمتوں نے گھریلو بجٹ بری طرح متاثر کر دیا ہے، جس کے باعث روزمرہ ضروریات پوری کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ شہر میں دودھ کی سرکاری قیمت 170 روپے فی لیٹر مقرر ہے، تاہم شہر کے مختلف علاقوں میں دودھ 220 سے 250 روپے فی لیٹر تک فروخت کیا جا رہا ہے اور دہی 260 روپے فی کلو گرام تک فروخت ہو رہا ہے۔ مختلف علاقوں میں روٹی 17 سے 20 روپے تک فروخت کی جا رہی ہے، جس پر شہری شدید پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں۔ دوسری جانب مرغی کے گوشت کا سرکاری ریٹ 403 روپے فی کلو مقرر ہے، لیکن اوپن مارکیٹ میں ہر دکان کا اپنا اپنا ریٹ ہے۔ اوپن مارکیٹ میں مرغی کا گوشت 403 کی بجائے 440 سے 450 میں فروخت ہو رہا ہے۔ شہر میں مہنگائی کا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ سرکاری قیمتیں صرف کاغذوں تک محدود، جبکہ اوپن مارکیٹ میں سبزیاں اور پھل عوام کی پہنچ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اوپن مارکیٹ میں برائلر مرغی مختلف ریٹس میں فروخت ہونے لگی۔ مرغی کا گوشت سرکاری ریٹ سے 20 سے 25 روپے فی کلو مہنگا فروخت ہونے لگا۔ بیف کا گوشت 800 روپے کی بجائے 1200 سے 1400 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے، جبکہ مٹن 1600 کی بجائے 2400 سے 2800 روپے فی کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ فارمی انڈوں کا سرکاری ریٹ 232 روپے فی درجن، مگر مارکیٹ میں 240 سے 245 روپے میں فروخت ہوئے۔ پھل اور سبزیاں عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہیں۔ آلو کی سرکاری قیمت 40 روپے مقرر کی گئی، لیکن بازار میں 60 روپے فی کلو، پیاز 100 کے بجائے 150 روپے، ٹماٹر 190 کی سرکاری قیمت کے باوجود 250 روپے، لہسن کا سرکاری نرخ 235 روپے ہے، مگر اوپن مارکیٹ میں 450 روپے تک جا پہنچا۔ ادرک بھی 350 کے بجائے 400 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔
भिंडी 90 के बजाय 120, करेला 70 के बजाय 100, जबकि टीडे 105 की सरकारी कीमत के मुकाबले में 120 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। फलों में कच्चा आम 40 के बजाय 90 रुपए, सिंधड़ी आम 230 के बजाय 290, जबकि आला क्वालिटी सिंधड़ी 270 के बजाय 350 रुपए में फरोख्त हो रही है। तरबूज 40 के बजाय 60 रुपए, आड़ू 190 के बजाय 250, सेब 355 के बजाय 400 रुपए में फी किलो फरोख्त हो रहा है। लाहौर में महंगाई की लहर बरकरार है। एलपीजी माफिया ने सरकारी नर्ख रोन डाले। दुकानों पर 241 के बजाय 450 तक किलो फरोख्त हो रही है। सार्फिन महंगी एलपीजी खरीदने पर मजबूर हैं। जी हाँ, लाहौर में महंगाई की लहर बरकरार। एलपीजी माफिया ने सरकारी नर्ख रोन डाले। दुकानों पर 241 के बजाय 450 तक किलो फरोख्त। सार्फिन महंगी एलपीजी खरीदने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब सोलर सार्फिन के जनरेशन लाइसेंस की शर्त बरकरार है। 25 किलो वाट से कम लोड के बावजूद नेपरा का लाइसेंस लेना होगा। नेपरा फीस खत्म की गई मगर लाइसेंस के इख्तियारात बरकरार हैं। उधर लेस्को ने नादहिंदगान से 1 अरब रुपए निकलवा लिए। नादहिंदा घरेलू कमर्शियल सनती सार्फिन से रिकवरी की गई। बिलों की मद में मजमूई तौर पर 2 अरब 19 करोड़ 74 लाख की वसूली की गई है। मजमूई तौर पर 63,000 नादहिंदा सार्फिन रिटायर पर आए। लेस्को ने 1 साल के दौरान बिलों की मद में शहर के नादहिंदगान से 1 अरब रुपए से जायद की रिकवरी कर ली। गुज़िश्ता माली साल में बिलों की मद में मजमूई तौर पर 2 अरब 19 करोड़ 74 लाख रुपए की रिकवरी की गई। मजमूई तौर पर 63,000 नादहिंदा सारिफीन से बिजली के बिलों की वसूली की गई। 40,000 रनिंग नादहिंदगान से 1 अरब 47 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई। 23,000 मुनक़ता शुदा नादहिंदगान से 72 करोड़ 29 लाख रुपए के वाजिबात वसूल किए गए। सेंट्रल सर्कुलर ने 9,000 नादहिंदगान से 39 करोड़ रुपए, ईस्टर्न सर्कल ने 4,000 नादहिंदगान से 32 करोड़ 96 लाख रुपए रिकवरी की। नॉर्दर्न सर्कल ने 21 करोड़ 49 लाख रुपए, साउदर्न सर्कल ने 9 करोड़ 54 लाख रुपए की रिकवरी। विफाकी हुकूमत की जानिब से सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार के लिए नेपरा लाइसेंस की शर्त बरकरार है। वजारत पावर डिवीजन के फैसले के बावजूद जनरेशन लाइसेंस के इख्तियार डिस्कोस की बजाय नेपरा के पास होंगे। सार्फिन के लिए 25 किलोवाट से कम लोड होने के बावजूद नेपरा लाइसेंस लाजमी करार दिया गया है। वजारत पावर डिवीजन ने 25 किलोवाट तक नेपरा लाइसेंस और फीस खत्म करने का फैसला किया था। इसके बावजूद लेस्को समेत दीगर कंपनियों में लाइसेंस लाजमी रखा गया है। कंपनियों को फराहम करदा ऑनलाइन पोर्टल पर भी दरख्वास्त को नेपरा भिजवाना पड़ता है। नेपरा से लाइसेंस मिलने पर सार्फिन को डिमांड नोटिस देकर कनेक्शन दिया जाता है। रेगुलेशन के बाद नेपरा से लाइसेंस लेना लाजमी करार दिया। नेपरा फीस खत्म की गई लेकिन लाइसेंस के इख्तियारात नेपरा के पास हैं। शामनगर रोड और मलका गलियों में तरक्याती काम आवाम के लिए अजाब बन गए। 1 साल से जायद का अरसा गुजर गया, सड़कों की मुरम्मत ना हो सकी। उधर शाह जमाल कच्ची आबादी में भी सहूलियात का फुकदान है। साफ पानी ना बिजली मकीन अजियत में मुब्तला है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से गैर फाल है। गलियों में सीवरेज का पानी भी जमा है। शामनगर रोड और मुलहका गलियों में तरक्याती काम अधूरे छोड़ दिए गए। पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कों की मुरम्मत ताहाल मुकम्मल न हो सकी। इलाका मुकीनों का कहना है कि टूटी फूटी सड़कों पर हादसात मामूल बन चुके हैं। गर्द गुबार उठने से आम दुरफ्त और मकामी ताजरों के कारोबार बुरी तरह मुतासर होकर रह गए हैं। 1 साल से जायद अरसे से उन्हीं वसाइल के साथ गुजारा करने पर मजबूर हैं। मुतलका अदारों की जानिब से सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए कोई अमली इकदाम नहीं किए गए। रोड वो तोड़ देते हैं, उसके बाद बनाते नहीं है, और वो कारोबार लोग एक दफा जहाँ से गुजर देते हैं उसके बाद दोबारा गुजरने का उनको रास्ता मिलता है। रोड सारी खराब है, मिट्टी घटा है, कारोबार आधे हो गया, बिल्कुल कोई कारोबार ही नहीं रह गया। ये आपके सामने ही है सूरत हाल सारी सड़क की। तोड़ दिया, गाड़ी गुजर नहीं सकती। बाइक वाले आते हैं वो गलियों से पीछे से निकल जाते हैं। काम जो था वो सारे बंद हो गए हैं। पीछे पाइपलाइन डली है, उनके कारोबार बंद है। आगे वाली सड़क ही नहीं चल रही, पीछे से आवाम ही नहीं आ सकती। शाह जमाल कच्ची आबादी में बुनियादी सहूलियात का शदीद फुकदान, साफ पानी मैसर न, बिजली का मुनासिब इंतजाम, मकीन मुश्किल जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। इलाके का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से गैर फाल पड़ा है। हाई वोल्टेज तारें निचली सतह पर लटक रही हैं। उधर गलियों में सीवरेज का पानी जमा है जिससे ताफुन और बदबू नए इलाके को अपनी लपेट में ले रखा है। मकीनों ने मसाइल हल करने का मुतालबा किया है। समनाबाद का नदीम शहीद रोड गुज़श्ता 6 माह से टूट फूट का शिकार है। रोड पर जगह जगह गहरे खड्डे बन चुके हैं। बारिश का गंदा पानी जमा होने से पैदल चलने वालों और गाड़ियों की आमदरफ्त मजीद दुश्वार हो गई है। खस्ताहाल सड़क के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो रही है और हादसात के खदशात में इजाफा हो गया है। इलाका मुकीनों ने मुतलका अदारों से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर सड़क की मुरम्मत और निकासियाब के मौसर इक़दामात किए जाएं।
LTA में आती इस्लाहात, घर बैठे नक्शा जमा करवाने और मंजूरी का अमल हवाई ताफे निकले। वन विंडो सेल पर नादरा काउंटर का सर्विस फीस अदम अदायगी की वजह से बंद रहना मामूल बन गया है। शहरी पेचीदा IT निज़ाम से बुरी तरह मुतासर होने लगे। LDA शोबा टाउन प्लानिंग का AI की मदद से नक्शे पास करना और गैर कानूनी बिल्डिंग्स की मॉनिटरिंग के दावे भी बेबुनियाद निकले हैं। वन विंडो सेल पर नादरा काउंटर का सर्विसेज फीस अदम अदायगी की वजह से बंद रहना मामूल बन गया है। LDA में चालान जमा कराकर ऑटो फीस वेरिफिकेशन का निजाम भी मुकम्मल तौर पर गैर फाल है। शहरी फीस जमा करा के मैनुअल वेरिफिकेशन के इंतजार की सूली पर लटके रहते हैं। LDA अकाउंट में आने वाले पैसों की ऑनलाइन वेरिफिकेशन मुमकिन है, जिसका मैकेनिज्म तक तैयार नहीं किया। चीफ सेक्रेटरी की जानिब से ई बस सिस्टम को फाल करने के अहकामात पर पूरी तरह अमल नहीं किया जा सका। ज़राए के मुताबिक DG LDA की जानिब से वन विंडो सेल पर IT इस्लाहात में LDA एहलकार खुद ही रुकावट हैं। LDA ज़राए के मुताबिक सिस्टम 100% ऑनलाइन होने से शहरियों का फायदा होगा, एहलकारों के नजराने रुक जाएंगे। IG पंजाब ने 15 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। सरफराज बिर्क AIG ऑपरेशंस पंजाब तैनात, नोटिफिकेशन जारी। जाहिद नवाज मरवत SSP स्कूल ऑफ इंटेलिजेंस तैनात। साद अफरीदी SP इन्वेस्टिगेशन नानकाना साहब तैनात। शौकत अली शेख एडिशनल डायरेक्टर सेंट्रल SPU लाहौर पंजाब तैनात कर दिए गए, जबकि नुमान जफर को SP सदर मुल्तान तैनात कर दिया गया। मुनीर बदर को SP इन्वेस्टिगेशन लोधरा तैनात कर दिया गया। जफर जवेद मलिक SP ऑपरेशन सेफ सिटी ओकाड़ा तैनात। मोहम्मद मुनीर बदर को SP इन्वेस्टिगेशन लोधरा तैनात कर दिया गया। जफर जावेद मलिक SP ऑपरेशन DIC 3 ओकाड़ा तैनात किए गए हैं। SP हसन रसा को SSPR IB मुल्तान तैनात कर दिया गया है। इसी तरह ईसा खान सुखेरा डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एलीट फोर्स पंजाब तैनात किए गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एलीट फोर्स SP हसन अफजल को CPO रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। SP फारूक जावेद को SP इन्वेस्टिगेशन बहावलपुर तैनात कर दिया गया है। SP जमशेद अली बटालियन कमांडर 3 पंजाब कांस्टेबलरी मुल्तान तैनात किए गए हैं। SP CCD 3 DJ खान आदिल आमिर को CPO रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। जहांदाद अकरम को SP CCD DJ खान तैनात किया गया है। रज़ाउल्लाह खान SP ऑपरेशंस DIC 3 झंग तैनात किए गए हैं। और लाहौर हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में दिन भर होने वाले अहम केसेस की समाअतों का अहवाल भी जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरी होने वाले अफराद के कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स में मुकदमात के जिक्र का मामला पुलिस ने अमल दरामद रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। अदालत ने करार दिया कि अदालत तब ही मुतमईन होगी जब अमली तौर पर ऐसे अफराद के सर्टिफिकेट्स में उनके मुकदमात का कोई इंदराज नहीं होगा। जस्टिस अबहर गुल खान ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की। जमीन की खरीदो फरोख्त से मुतालिक 15 साल पुरानी सिविल नजरसानी दरख्वास्त हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। अदालत ने करार दिया कि महज फर्जी तारीखें दर्ज करके जायदुल मियाद मुकदमात को काबिल समाअत नहीं बनाया जा सकता। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया। MPA साकिब चद्दड़ और अदाकारा मोमिना इकबाल के दरमियान तनाजे से मुतालिक केस में अहम पेशरफ्त। लाहौर हाई कोर्ट ने अदाकारा मोमिना इकबाल की बहन एडवोकेट रिमशा इकबाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से मुतालिक जस्टिस ऑफ पीस का हुक्म आइंदा समाअत तक मुअत्तल कर दिया। जस्टिस अबहर गुल खान ने रिमशा इकबाल की जानिब से दायर आईनी दरख्वास्त पर समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की 20 खाली आसामियों पर तयनाती के लिए मुशावरत का अमल तेज हो गया। जराये के मुताबिक 10 नए जजेस की तकर्री के लिए 20 सीनियर वकला के नाम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इरसाल कर दिए गए। हतमी फैसला जुडिशल कमीशन के आइंदा इजलास में किया जाएगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने 11 सीनियर वकला के नाम तजवीज किए हैं। ई बाइक स्कीम पर महकमा खजाना के तहफ़्फ़ुज़ात 1 लाख की बाइक और रिक्शा स्कीम पर मालियाती वजाहत तलब कर ली गई। सब्सिडी, कर्ज और डिफॉल्ट रिस्क की तफसीलात भी मांगी गई। फाइनेंसिंग स्कीम का दोबारा जायजा लिया जाएगा। महकमा खजाना ने मंसूबे पर प्लान तलब कर लिया है। आलमी बैंक की मुआवनत से मुंसलिक मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत ई बाइक्स और रिक्शों की स्कीम फाइनेंसिंग स्कीम महकमा खजाना के एतराज़ात की जद में आ गई। 1,20,000 इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स और रिक्शे शहरियों को दिए जाने थे। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक महकमा खजाना ने मंसूबे की मालियाती ढांचे, सब्सिडी, कर्जों के डिफॉल्ट रिस्क, हुकूमती माली जिम्मेदारियों और बैंक ऑफ पंजाब को बतौर मालियाती सालिस और प्रोग्राम मैनेजर दिए गए। महकमा खजाना ने किरदार पर तफसीली वजाहत तलब करते हुए मंसूबे का मुकम्मल मालियाती और इंतजामी प्लान दोबारा पेश करने
करने की हिदायत की है। दस्तावेजात के मुताबिक आलमी बैंक की $44 मिलियन की मावनत से मुंसलिक इस मंसूबे में मुख्तलिफ तबकों को इलेक्ट्रिक बाइक्स और रिक्शों की फराहमी की तजवीज़ दी गई है। महकमा खजाना ने इदारा जाती तैयारी, बैंक ऑफ पंजाब की ऑपरेशनल सलाहियत, माजी के तजुर्बात और माली खतरात का जामे जायजा लेने की सिफारिश करते हुए मंसूबे को मजीद वजाहत के लिए वापस भिजवा दिया है। और वफाकी बजट में बिजनेस क्लास टिकट्स में टैक्सेस में कमी कर दी गई है। बिजनेस क्लास सफर करने वाले मुसाफिर को किराए में बड़ा रिलीफ मिल गया है। किस मुल्क जाने के लिए कितना रिलीफ दिया गया, देखते हैं ये रिपोर्ट। विफाकी बजट में बिजनेस क्लास टिकटों में टैक्सेस की कमी कर दी गई है। बिजनेस क्लास सफर करने वाले मुसाफिरों को किरायों में बड़ा रिलीफ दिया गया है। अमेरिका, कनाडा और साउथ अमेरिका की बिजनेस क्लास टिकट पे 50,000 रुपए तक टैक्स छूट मिल गई। मुसाफिरों को यूरोप, बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, हांगकांग की बिजनेस क्लास टिकट पे 40,000 रुपए तक और मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब समेत दीगर मुमालिक की बिजनेस क्लास टिकटों में 25,000 रुपए की छूट दी गई है। मुसाफिरों को टैक्सीज में कमी की सहूलत 1 जुलाई 2026 से मुयस्सर है। हुकूमत इजाफी टोल टैक्स, टोकन टैक्स और ट्रांसफर फीस वापस ले। पाकिस्तान मिनी मस्जिद एसोसिएशन ने खबरदार किया है कि मुतालबात मंजूर ना हुए तो मुल्क की पहिया जाम हड़ताल की जाएगी। मरकजी सदर तनवीर अहमद जट का कहना है कि हुकूमत ने ट्रांसपोर्टर्स से किए गए वादे पूरे नहीं किए। बाबू साबू चौक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान मिनी मस्जिद एसोसिएशन के मरकजी सदर तनवीर अहमद जट ने कहा कि हुकूमत की यकीन दहानी पर पहले भी हड़तालें खत्म की गईं, मुतालबात पर अमल दरामद ना हो सका। उनका कहना था कि अवामी मुफाद में आज लाहौर का एहतजाज मौखर किया गया है। मरकजी सदर का कहना था कि अगर टोकन टैक्स, टोल टैक्स, ट्रांसफर फीस में इजाफा वापस ना लिया गया, नाजायज चालान बंद ना हुए और पेट्रोल पर लेवी खत्म ना की गई तो मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल होगी। नेशनल ट्रांसपोर्ट के सदर मलिक अमजद और एसोसिएशन ओहदेदारों ने भी खबरदार किया कि मुतालबात मंजूर ना हुए तो ट्रांसपोर्टर्स सड़कों पर गाड़ियां खड़ी करके एहतजाज करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने अलामती एहतजाज भी किया। कैमरामैन जमील अहमद के साथ ताहिर जमील खान, सिटी 42। गर्मी हो या सर्दी, पानी की बोतल अब हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि ये बोतल हमारी सेहत पर क्या असर डाल सकती है? देखते हैं ये रिपोर्ट। बाजार में मिलने वाली हर बोतल एक जैसी नहीं होती। इसका मटेरियल, इसकी क्वालिटी और इसका इस्तेमाल सब कुछ हमारी सेहत पर असर अंदाज हो सकता है। कई प्लास्टिक बोतलों में BPA यानी बिस्फेनोल A नामी केमिकल मौजूद होता है। अगर ये बोतल गर्मी या धूप में रखी जाए तो ये केमिकल पानी में शामिल हो जाता है, जो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। माहिरीन के मुताबिक BPA हार्मोनल निजाम को मुतासिर कर सकता है और खास तौर पर बच्चों की नशोनुमा और बड़ों की सेहत पर मनफी असरात डाल सकता है। शहरियों का कहना है कि हमने कभी भी पानी की बोतल खरीदते वक्त प्लास्टिक की क्वालिटी पर तवज्जो नहीं दी। हम हमेशा इसके स्टाइल या कीमत को देखकर खरीदारी करते हैं। देखिए, हम जब शॉप पे आते हैं तो हम सबसे पहले बोतल से देखते हैं पानी की, और ये नहीं देखते कि क्वालिटी कैसी है, ये देखते हैं कि हाथ में पकड़ी कैसी अच्छी लगेगी। बच्चे देखेंगे तो बस यही दैट्स इट। हम जो है वो क्वालिटी नहीं देखते, हम बस यही देखते हैं कि आते हैं बोतल लेके चले जाते हैं, बस क्वालिटी नहीं देखते हम। दुकानदारों का कहना है कि हमारे पास कम मेयारी और अच्छी क्वालिटी दोनों तरह की बोतलें मौजूद होती हैं, लेकिन ज्यादातर शहरी अच्छी क्वालिटी की बोतल मांगते ही नहीं। सिर्फ चंद लोग ही बेहतर क्वालिटी को तरजीह देते हैं। एक प्लास्टिक वेस्ट आ रहा है, प्योर आ रहा है, फिर उसमें सेमी प्योर, 3 किस्म के प्लास्टिक होते हैं। वेस्ट तो आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है, जो प्योर है वो अच्छा है। जितनी देर तक हम कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं ना करेंगे कि ये बोतल अच्छी है और ये बोतल हल्की है, उतनी देर तक क्लाइंट को बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। उन्होंने सिर्फ प्राइस चेक करनी होती है कि प्राइस हल्की, हाई, लो किसकी है और हाई किसकी है। लो प्राइस को वो ज़्यादा मद्देनज़र रखते हैं और हाई प्राइस को वो इसलिए नहीं लेते कि हर बंदे की अपनी अपनी गुंजाइश होती है। गर्मियों में पानी पीना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन किस बोतल में पिया जा रहा है, सवाल ये है। एक छोटा सा इंतखाब आपके सेहत पर बड़ा तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है। कैमरामैन अब्बास भट्ट के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42। मिनिस्टर कॉलोनी में स्टेट ऑफ द आर्ट नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस और गर्ल्स कैंपस कायम। जदीद सहूलियात से आरास्ता इस इदारे में सरकारी स्कूल की तरह हज़ारों तालिबात मुफ्त तालीम हासिल कर सकेंगी। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में जदीद रोबोटिक्स, AI, साइंस, कंप्यूटर, EC और स्टेम लैब बना दी गई हैं। स्कूल में तलबा को दाखिला, यूनिफॉर्म, किताबें और दीगर सहूलियात मुफ्त फराहम की जाएंगी। प्रिंसिपल मनज़्ज़ा मुर्तज़ा का कहना है कि अदारे में तलबा को ऑक्सफोर्ड का निसाब पढ़ाया जाएगा। जो लेवल हम ऑक्सफोर्ड लेवल अटेन करते थे वो लेवल हम यहाँ पर
کر رہے ہیں اپنے بچوں کے اندر نا انٹرٹین، کہ بچہ جو ایک انڈر پریولیج اسکور کا بچہ تھا، جو ان کے پیرنٹس وش کرتے تھے کہ ہمارا بچہ بھی آکسفورڈ لیول کو ٹچ کرے اور وہ ABI روبوٹکس اور AI کی جو ٹیکنالوجیز ہیں ان سے وہ مستفید ہو سکے، وہ اب ہمارے اسکول میں بغیر فیس کے ان سب چیزوں کو جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے انڈر کنٹرول انڈر سپرویژن میں جو ہے وہ ہم لوگ مینٹین کر رہے ہیں۔ نواز شریف اسکول آف ایمیننس نشتر کیمپس فار گرلز میں داخلوں کے لیے 3500 درخواستیں موصول ہوئی۔ داخلوں کے لیے ٹیسٹ پیکٹا کے تحت 9 اور 10 جون کو لیا جائے گا۔ 3500 پلس ہمارے پاس جو ہے وہ اس ٹائم بچے انرول ہو چکے ہیں، جس میں سے فرسٹ راؤنڈ جو ہے ٹیسٹ کا وہ ہم لینے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہمارے آلموسٹ 1500 پلس بچوں کا ٹیسٹ ہوگا، اور اس کے بعد باقی سارے بچے جو ہیں جو 29 جون کے بعد رجسٹرڈ ہوئے ہیں ان کا ٹیسٹ سیکنڈ راؤنڈ میں لیا جائے گا، اور سیکنڈ راؤنڈ میں بچے جو انرول ہوں گے اور پھر ان کا ملا کر کلیبریشن کے ساتھ جو ہے 15 اگست سے کنونشنل وے میں ہم اپنی کلاسز کا آغاز کریں گے۔ پہلے مرحلے میں صوبے بھر میں 116 نواز شریف اسکول آف ایمیننس بنائے جا رہے ہیں، جن میں سے لاہور میں ان کی تعداد 16 ہے۔ نواز شریف اسکول آف ایمیننس میں باقاعدہ طور پر نصابی سرگرمیوں کا آغاز 1 ستمبر سے کیا جائے گا۔ کیمرہ مین رانا مشہود کے ہمراہ جنید ریاض، سٹی 42۔